टेंस तो है जी। तो हम लोग घर पहुंच गए, वही काफ़ी है अब। ये एडवाइजरी जो थी वो थोड़ी डिप्लोमेटिक टाइप की थी कि आपने आना है तो आ जाओ, नहीं आना है तो आपकी इच्छा है। 10 दिन का समय ऐसा कटा है जैसे पहाड़ से टूट गया हो। मेरे ऊपर से आसमान गिर गया, ये मान। हमारे घर में बिल्कुल शांति, कोई किसी से बात नहीं करना, बस फोन आता तो हमें राहत मिलती कि हमारा बच्चा सेफ है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਸਿੰਗਲਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੜਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ? यूक्रेन से आई हूँ, नवंबर में गई थी और खारकिव में थी मैं। खारकिव में बताया जा रहा है, जैसे हम सुन रहे हैं कि खारकिव में बहुत जो है माहौल टेंस बना हुआ है इस समय। हाँ जी, टेंस तो है जी। तो हम लोग घर पहुंच गए, वही काफ़ी है अब तो। कैसा क्या प्रोसेस क्या रहा पूरा घर आने का, वापसी मतलब कितने दिन लगे, कितना समय लगा, क्या आप कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? हाँ जी, प्रॉब्लम तो बहुत हुई बट लेकिन 10 दिन लग गए निकलते। जी। तो इंडियन एम्बेसी ने हेल्प करी है, गवर्नमेंट ने हेल्प करी है और यूक्रेन के सोल्जर्स वगैरह सभी ने हेल्प करी है, तो थैंक यू सभी को। इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि हमने 2 महीने पहले एक एडवाइजरी जारी की थी कि यूक्रेन में जो स्टूडेंट्स हैं वो वापस आए इंडिया। अदर कंट्रीज़ ने भी की थी लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स ने मानी नहीं उनकी बात। एक्चुअली एडवाइजरी जो थी वो थोड़ी डिप्लोमेटिक टाइप की थी कि आपने आना है तो आ जाओ, नहीं आना है तो आपकी इच्छा है। तो हम लोग तो पढ़ाई करने गए तो हम इसलिए नहीं आए। जी। तो फिर बाद में एकदम ऐसी सिचुएशन बन गई तो फिर हम लोगों को आना पड़ा, लेकिन फिर आने के लिए बहुत दिक्कत हुई। जी। ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਯੂਕਰੇਨ ਟੂ ਇੰਡੀਆ? मैं खारकिव तो आया जी। हाँ जी। ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਵੀ ਤੁਰੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਸ਼ੋਚਿਨ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ। 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ? ਜੀ ਜੀ, 900 ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਲੈਣ ਆਈ ਆ। ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਪਲੇਨ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਜੀ, ਸਮੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਆ, 700 ਸਮਥਿੰਗ ਬੱਚੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੀ ਦੀ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਜਦ ਬਾਕੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਸਟਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਰਕਿਵ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸਮੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਂਦਾ ਖਾਰਕਿਵ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਖਾਰਕਿਵ ਦੇ ਜੀ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ? 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ। ਇਸੀ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, 3 ਤੋਂ 4। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸਫ਼ਰ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਂ ਹੁਣ? ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਫ਼ਰ। ਜੀ। ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸੁਧਰਨ, ਜੇਕਰ ਸੁਧਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ ਆਪਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਪਸ ਜਾਊਂਗੇ। ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਪਣੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ? ਹਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਉਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਯੂਕਰੇਨ? मैं गई थी 11 दिसंबर 11 यूक्रेन। दिसंबर। यस। ओके। क्या स्टडी करने गए थे और कितना समय हुआ आपको? मेडिसिन स्टडी करने गए थे एंड 2 मंथ्स हुए हैं मुझे वहाँ गए हुए। जी। और आप कहाँ पे रहते थे यूक्रेन में और वहाँ पे क्या माहौल था, सिचुएशन कैसी थी? मैं खारकिव सिटी से आई हूँ और मैं हॉस्टल में रहती थी। वहाँ की सिचुएशन बहुत 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 ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। कंटिन्यूसली शेलिंग एंड बॉम्बिंग हो ही रही है वहाँ पे। जी। क्या मैसेज देना चाहोगे कि बाकी यूक्रेन में जो स्टूडेंट्स अभी और बाकी हैं, इंडियंस कह सकते हैं हम, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि कुछ जल्दी से जल्दी यहाँ आएँ, सेफली आएँ। और वो इंडियन गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, कॉन्टिन्यूसली हेल्प कर रही है, वो होप्स ना छोड़ें। या। पर इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि उन्होंने 2 महीने पहले एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें उन्होंने पहले ही आइडिया दिया था कि यूक्रेन में ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन बच्चों ने हमारी मानी नहीं। ऐसा नहीं है, वहाँ सिचुएशन नॉर्मल थी तब, तो इसलिए स्टूडेंट्स नहीं मान रहे थे आने के लिए। बट फिर जब सिचुएशन वर्स हुई तो ऑब्वियसली सब घर आना ही चाहते हैं। तो अभी आपको लगता है कि यूक्रेन में और भी इंडियन स्टूडेंट्स अभी बाकी हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के बड़े बड़े मिनिस्टर वहाँ पे मौजूद हैं इस समय, कुछ बाकी हैं स्टूडेंट वहाँ? हाँ, थोड़े बहुत स्टूडेंट्स हैं अभी वहाँ पे एंड गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि उनको जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करे, तो अब देखते हैं क्या होता है। जी, थैंक यू। इनके पारिवारिक सदस्य भी साडे नाल मौजूद है। सर कित्थे दे रहने वाले हो? अलवर राजस्थान। अलवर राजस्थान। किवें देखदे हो बच्चे वापस आए ने अज,
ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਟੈਂਸ ਰਿਹਾ 10 दिन का समय ऐसा कटा है जैसे पहाड़ से टूट के हो। और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने जितना साथ दिया है शायद ही किसी गवर्नमेंट ने साथ दिया हो किसी देश का। जी हम अपने हिंदुस्तानी होने पे गर्व करते जी। हैं कि हमारे बच्चों को सकुशल इंडिया गवर्नमेंट ने यहाँ पे लिए। जी क्या बच्चों ने अपनी संघर्ष पूरा रखा जी और आखिरी रास्ते तक संघर्ष नहीं तोड़ा। जी। इस बात की हमें बच्चों के ऊपर भी गर्व है। जी अब जब बच्चों की स्टडी अधूरी रहेगी बीच में, क्या प्लानिंग है अब आगे? इंडिया में स्टडी करवाओगे या गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट या हेल्प की उम्मीद रखते हो? कोशिश तो इंडिया की है जी। जी अगर यूक्रेन में सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, हम भी दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द नॉर्मल हो, तो आप अपने बच्चे को वापस यूक्रेन भेजो? अभी तो नहीं सोच सकता जी मैं। अभी नहीं सोच सकता। डर है मन में, मतलब अभी डर है। अब डर है, पहले डर नहीं था। पहले डर नहीं था लेकिन अब डर है। जी माता जी भी नाल मौजूद ने, गलबात कर लेने। माता जी कैसा पिछले 10 दिन का समा कैसे निकला आपका? भाई हम तो मेरे ऊपर से आसमान गिर गया ये मान लीजिए। जी। हमारे घर में बिल्कुल शांति, कोई किसी से बात नहीं करना, मतलब इतना ज्यादा सब एक एक कोने में बैठना, भगवान का नाम पूरे टाइम लेते रहना। जी। बस फोन आता तो हमें राहत मिलती थी कि हमारा बच्चा सेफ है। कैसे देखते हो जो इंडिया या अदर कंट्रीज के लोग थे वो तो यूक्रेन से बाहर जा सकते हैं, लेकिन यूक्रेन के जो लोग हैं जो इस समय कहीं जा ही नहीं सकते, उनके बारे में क्या कहोगे? भाई जैसे सुमी के हैं बच्चे, पर मैं इतना ही कहूँगी थोड़ा सा सब्र रखें। मैं मानती हूँ उनके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति है, वो बर्फ लेके उसको पिघला के पानी पी रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि भाई थोड़ा सब्र रखें, गवर्नमेंट ज़रूर उन्हें निकाल लेगी। जी बिल्कुल। भाई यही मेरा मैं सवाल ये था कि जो यूक्रेन के रहने वाले लोग हैं जो किसी दूसरी कंट्री में, दूसरे देश में नहीं जा सकते, उनके लिए क्या सोचते हो? भाई उनके लिए तो यही है कि वो ऐसे सेफ जोन पे रहें, और रशिया से या जो भी मेरे को कहा जाए कि मतलब जो लोकल है उनके ऊपर अटैक ना हो, उनको सेफ जोन में रहने दिया जाए या कुछ ऐसा करा जाए कि वो सेफ रहे। जी बहुत बहुत एक बात और कहना चाहूँगा आपसे, इस यूनिवर्सिटी के जो सर हैं करण सर और उनकी टीम को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने इन बहुत help की है बच्चों सबको ऐसी कड़ी सिचुएशन से बाहर निकालने में इन स्टूडेंट्स की मदद करी। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਪੂਰੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਰਕਿਵ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਗਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਮਲ ਸਿੰਗਲਾ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ।